I have one question for all of you. Is it really necessary to leave your house, go to Delhi, prepare here, leaving your friends, family, and the emotional support that you have back at home? Is it really necessary to come to Delhi or go to any other place to prepare for UPSC, where, on the other hand, all the resources, all the guidance, everything can be easily available and is easily accessible to all of you at the comfort of your home? Is it really necessary in 2025 to leave everything and go for different places, settle there, and prepare for UPSC? I know you all are wondering and having these same questions if you are going to give your attempt in 2026 or 27. यही दुविधा चल रही होगी ना दिमाग में. I also had the same question in my mind when I started my preparation. I met a lot of those people who have cleared this examination, and I have come up with really practical answers and solution to your problem. I want all of you to stick to the very end of this session to get your answers of this question, self study versus coaching. तो आज इस बिल्कुल फाइनल क्लोज लगा देते हैं इस क्वेश्चन पे, सो दैट यू कैन प्रिपेयर विद पीस इन योर माइंड. Before I answer any of your questions or any of your doubts, I want to again start with my own story. I also prepared for UPSC examination, and I prepared for UPSC. First, in the initial 1 month, I took a coaching, and then I understood the reality and I prepared from my own house, where I understood how easily accessible even the right mentorship, the right resources are. Now, first thing in my preparation that I realized was that UPSC is not about location. The preparation is not about location. यूपीएससी प्रिपरेशन इज अबाउट डेडिकेशन, नॉट लोकेशन. अगर आपने ये बात अपने दिमाग में बिठा ली, if you stick to this fact, then trust me, even you will become disciplined in completing your targets and your daily timetable. Dedication plus the right tools are the only way through which you can clear this exam or any other exam for that matter. नाउ यू विल बी वंडरिंग, मैम डेडिकेशन तो है, तभी तो हम बाहर जाकर कोचिंग लेकर तैयारी कर रहे हैं. एंड आई एम नॉट अगेंस्ट एनी कोचिंग. आई एम जस्ट गिविंग यू द रियलिटी ऑफ 2025. I know most of you must be preparing for 2026 or 2027, and you must be looking after different coachings. You must be looking after options of even self study, और दोनों में ही कोई बुराई नहीं है. बट आज के टाइम में, कंसिडरिंग टुडेज टाइम, व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड अस, एंड वी हैव सीन सो मेनी इंस्टेंसेस in the recent past, right, in the UPSC preparation, you all are aware of it. We need to understand which one is the feasible option, सेल्फ स्टडी और कोचिंग. अगर हम फीजिबिलिटी की बात करें तो ये अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, तभी आप सही तरीके से तैयारी बिना टेंशन के कर पाओगे. और एल्स टिल द वेरी एंड ऑफ दिस प्रिपरेशन यू विल बी जगलिंग विद द फैक्ट, काश हमने सेल्फ स्टडी कर ली होती, काश हमने कोचिंग ले ली होती, काश ये कर लिया होता. एंड दैट काश इज गोइंग टू बी द डूम ऑफ ऑल ऑफ अस, and we don't want that to happen. So, in order to save our one precious year, we need to take the final decision today. And that is why I am making this video. Now, when we talk about UPSC examination, first thing that you have to keep in mind is, let me help you understand this through my own story. Now, when we talk about coaching, सबसे पहले ये समझते हैं कि कोचिंग स्टूडेंट लेता ही क्यों है. Why there are coachings? Why do we go after coachings? लास्ट 2 साल पहले तक कोचिंग्स वर वेरी इंपॉर्टेंट. वाई? बिकॉज वी अंडरस्टूड कोविड भी हुआ था, राइट? एवरीबडी वॉज कन्फाइंड टू देयर हाउस, एंड इसीलिए उनको उस टाइम पर देर वॉज अ प्रॉब्लम ऑफ फोमो दैट वी आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग. देन वाई वी गो टू कोचिंग? बिकॉज हम बचपन से ही कंडीशनड होते हैं. राइट फ्रॉम आवर स्कूल वी गो टू ट्यूशंस, देन वी गो टू कॉलेजेस. जब हम कॉलेज जाते हैं वहां पर भी हम देखते हैं कि इन पीयर, इन ग्रुप, we are able to perform better because we are not restricted or limited to something, right? हम restricted नहीं होते हैं. सेल्फ जब हम घर में होते हैं तो हमें लगता है कि चलो ये पढ़ लिया, अब नेक्स्ट क्या करें. देयर इज नो फीलिंग ऑफ कंपटीशन. when we are in college or school, there is a fear of competition. अरे नेहा ने इतना कर लिया और राजीव ने इतना कर लिया, I have to go one step further, right? Because of that competition we feel motivated, and ultimately तभी हमें लगता है कि हम succeed कर रहे हैं.
अर्लियर टाइम्स में भी अगर आप देखो, वी स्टडी द वैदिक पीरियड, वी स्टडी द एंशियंट सिविलाइजेशन, वी सी द कॉन्सेप्ट ऑफ गुरुकुल। सब एक क्लास में, एक बैच में बैठ के पढ़ रहे हैं, दैट हैज बीन वेरी नाइसली, यू कैन से, इम्प्रिंटेड इन आर डीएनए। इसीलिए हमें लगता है कोचिंग सबसे पहला बेटर ऑप्शन है। कोई भी स्टडी, फील्ड ऑफ स्टडी ले लो, बी इट सीए प्रेपरेशन, बी इट योर एनी अदर एग्जाम, आरबीआई एग्जाम, बैंक एग्जाम, पेरेंट्स यही बोलते हैं चलो कोचिंग ढूंढ लेते हैं। पेरेंट्स के मुंह पे भी एक ही सबसे पहले वर्ड आता है, दैट इज कोचिंग। व्हेन आई डिसाइडेड टू अपीयर फॉर यूपीएससी, माय फादर सेड घर पे बैठ के पढ़ाई मत करना, लेट्स गो टू अ कोचिंग बिकॉज दिस इज अ न्यू प्रेपरेशन फॉर यू, यू वर अ सीए स्टूडेंट, अब ये बिल्कुल नए फील्ड में आ गए हो, तो इट इज बेटर to get the right guidance from those who have cleared it or who have given this exam, and what better than the teachers who have appeared for this exam themselves, right? And इसलिए हम सबसे पहले प्रेफरेंस चुनते हैं कोचिंग का, एंड उसमें कोई हार्म भी नहीं है। बट देन वी हैव टू रियलाइज दैट इन टूडेज टाइम इवन कोचिंग इज बिकमिंग अ फियर मॉन्गरिंग इंस्टीट्यूशन। काफी ऐसा हो रहा है दैट अगर आपने कोचिंग नहीं लिया, कोचिंग यूज टू बी एन ऑप्शन बैक इन द डेज, नाउ इट देयर इज अ फियर दैट हैज बीन क्रिएटेड इन आवर माइंड्स कि अगर नहीं ली तो होगा ही नहीं तुम्हारा क्लियर। And that is what I faced personally in my preparation journey. Do let me know in the comment section if you have heard the same thing in your preparation or not, कि अगर कोचिंग नहीं ज्वाइन की, ये कोचिंग नहीं ली, वो नहीं ली, तो आपका क्लियर सिलेक्शन नहीं हो सकता। अब ये डर जब मेरे दिमाग में बैठ गया, देन आई जॉइंड अ कोचिंग। When I joined a coaching, what happened? The first thing was I became overwhelmed. Overwhelmed कैसे? I saw in a classroom 110 plus students sitting. Jam packed classroom था। टाइम पर पहुंची थी, फिर भी मुझे मिडल रो में ही सीट मिली। एंड 110 प्लस स्टूडेंट्स, बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है। देन व्हेन वी टुक आउट आवर बुक्स, सबसे पहले सिलेबस से इंट्रोड्यूस करवाया गया। एंड व्हेन सिलेबस से इंट्रोड्यूस करवाया गया, देयर वर मेनी स्टूडेंट्स हु ऑलरेडी न्यू द सिलेबस बिकॉज उनका सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट था, मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट था। दो स्टूडेंट्स वर आंसरिंग, वर आस्किंग क्वेश्चंस, एंड आई हैड नो क्वेश्चंस बिकॉज आई वाज देयर फॉर द फर्स्ट टाइम। आई बिकेम अगेन ओवरवेल्म्ड। ओवरवेलमिंग सेंसेशन जो था दिमाग में, वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। देन व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे हुआ। द टीचर वॉज टीचिंग 110 प्लस स्टूडेंट्स देयर, जिनमें से काफी स्टूडेंट्स का सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट था। दे ऑलरेडी न्यू द सब्जेक्ट, सो दे वर आंसरिंग क्वाइट ऑफन, दे वर रेजिंग देयर हैंड्स टू आस्क दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो मेरे दिमाग बना ही नहीं पा रहा था बिकॉज मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो वहां पर ओवरवेल्म और एंजाइटी थोड़ी सी और बढ़ी कि ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया, व्हाई आई डिड नॉट थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन। एंड दैट्स व्हेन आई जॉइंड अ पीयर ग्रुप। वहीं कोचिंग में एक पीयर ग्रुप भी मुझे मिला। ठीक है, अब हमने ज्वाइन किया वो ग्रुप। अब उस ग्रुप में क्या होता था, देयर वर अगेन स्टूडेंट्स जो एक्स्ट्रा पढ़कर ही आते थे, एंड वहां पर एक कल्चर बन गया टू शो ऑफ नॉलेज। अब स्टूडेंट्स अपनी नॉलेज को शो ऑफ करने के लिए दे आर रिसर्चिंग मोर, दे आर कमिंग अप विद वेरी इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स एंड फैक्ट्स, पता नहीं किस किस ईयर का डेटा उनको पता है, एंड दे आर शेयरिंग इट, एंड आई वाज सिटिंग क्वाइटली बिकॉज अगेन आई वाज ओवरवेल्म्ड कि इनको इतना कैसे पता है। मैं तो अभी जितना पढ़ पा रही हूँ उसी को एसिमुलेट करने में मुझे टाइम लग रहा है, एंड दे नो 10 स्टेप्स, दे आर 10 स्टेप्स अहेड ऑफ मी। सो दैट ऑल्सो क्रिएटेड अ फियर। Then when I used to go to the coaching, because Delhi है, आसपास pamphlets, boards, everything is there. Other coaching students are also coming up. In metro discussions are going on. तो मुझे देखने को मिल रहा है, अरे उस कोचिंग में this is the book that the teacher is using. That is the book. And from that book, these many questions came. And again, a fear got developed in my heart. कि अरे what I am studying, the coaching that I am in, वो कम है क्या? वहां पर तो ये बुक नहीं मिल रही है, वहां तो ऐसा कोई क्लेम नहीं हो रहा है कि इतने क्वेश्चन आए, उतने क्वेश्चन आए। तो थोड़ा सा एंजाइटी बढ़ने लगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट, आफ्टर 1 month आई केम बैक टू होम एंड आई टुक द डिसीजन कि अब मैं वेल रिसर्च करूंगी। आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट अप 10-11 months in just this anxiety and overwhelming sensation in my head, and I switched to my self study, where I invested 1 week in the right guidance online, in the right resources, without any FOMO, without listening to this person or that person। मैंने खुद से रिसर्च किया कि इस सब्जेक्ट के लिए based on PYQs, based on this topper's guidance, I selected only one topper to get guidance from online, and I picked up the resources जो मुझे resonate हुआ। बेसिक एनसीईआरटी से शुरू करना था, जो कोई नहीं बताता बिकॉज सब अपने मटेरियल देने पे शुरू हो जाते हैं।
I started with basic NCRTs. धीरे धीरे my foundation got developed. Further, I learned how to research. Then I understood how to go through the PYQs, because आप PhD नहीं कर रहे हो UPSC में. Even in UPSC syllabus, in the notification it is written, journal understanding and awareness is tested. आपको delve deeper नहीं करना हर subject में, PhD नहीं करनी है, आपको basic awareness होनी चाहिए. That was not told to me in the coaching. Okay, so that's when I took the informed decision for my own self, so that I do not become overwhelmed for the next 10 to 11 months in my journey. I created a comparison table for myself. मैंने अपने लिए एक टेबल बनाया. देखो, अपने दिमाग को रीवायर करना बहुत ही मुश्किल होता है. I was also wired into coaching system. I was also wired into this kind of class, that kind of class. In college अलग अलग subjects की अलग अलग classes हम लिया करते थे, right? तो वो वायरिंग बहुत स्ट्रांग थी. खुद से खुद के दम पर कुछ करने का या खुद के दम पर अपनी पढ़ाई शुरू करने का जो जज्बा था वो बहुत कमजोर था मेरे अंदर स्टार्टिंग में. सो व्हाट आई डिड, आई वॉज अ चार्टेड अकाउंटेंसी स्टूडेंट. तो मेरे दिमाग में हमेशा टैबुलर फॉर्मेट में चीजें चलती हैं. आई ऑलवेज स्ट्रक्चर थिंग्स इन माई प्रेपरेशन एंड इन माई लाइफ इन टू टेबल्स. आई ट्राइड, जैसे आई एम वेरी गुड इन क्रिएटिंग बैलेंस शीट्स, आई एम वेरी गुड इन ऑडिटिंग, आई एम वेरी गुड इन टैक्सेशन. सो वॉट आई डू, आई ऑलवेज स्ट्रक्चर थिंग्स, प्रोज एंड कॉन्स को मैं लिखती जाती हूँ, एंड देन आई मेक एन इन्फॉर्म डिसीजन जस्ट लाइक एन ऑडिटर. सो वॉट आई डिड इन दिस जर्नी ऑल्सो, I created a table based on different criteria. For example, cost. Second criteria was flexibility. And आप भी इस table को use कर सकते हो. Third was individual attention. Individual attention, because in my case, I needed attention because I was a beginner. Even अगर आपका second या third attempt है, आपके लिए एक नई शुरुआत है in your journey, right? Because you don't know what mistakes you committed. You want someone very informed to guide you. Then I created next criteria as environment and updated material. ये मेरे दिमाग में मैंने criteria तैयार किया. And once I created this criteria, I started filling it down. मैंने ये table भरनी शुरू करी. If we look at coaching, यहाँ पर मैंने एक कॉलम बनाया कोचिंग का, यहाँ मैंने एक कॉलम बनाया सेल्फ स्टडी का. If I look at coaching, I invested 1.5 to 2 lakhs in coaching, which was giving me nothing but high BP and anxiety. But self study की तरफ जब मैंने switch किया, it was often free. Minimal cost लगा मेरा वहां पर. Minimal. I will write minimal over here. 1.5 लाख तो नहीं लगा. Not more than 15,000. Okay, 15 to 20,000. Flexibility. अगर हम यहाँ देखें, coaching had fixed schedule. For example, I was very good in history. So the history classes, when I used to go to those classes, मुझे वहां से ज्यादा value addition नहीं मिल रहा था, because it was very easy for me to understand and to make notes in history. So in classes it was not a value addition for me, so my time was getting wasted. But here in self study, I had very flexibility in my time. I knew how much time I need to invest in history. जरूरी नहीं है मैं 4 घंटे की क्लास की तरह 4 घंटे हिस्ट्री में इन्वेस्ट करूं, when in 1.5 hour I can complete the same topic. Okay, so it was very flexible. इंडिविजुअल अटेंशन की बात करें, आई टोल्ड यू इनिशियली इन द क्लास दैट आई जॉइंट 110 प्लस स्टूडेंट्स वर देयर. तो इंडिविजुअल अटेंशन तो लिमिटेड था. आई वॉज वेरी वीक इन इकोनॉमिक्स इनिशियली. अब तो इकोनॉमिक्स काफी अच्छी हो गई है. सो इन इकोनॉमिक्स आई हैड डाउट्स इन वेरी मिनिमल एस्पेक्ट्स. रेपो रेट का इम्पैक्ट, मनी मल्टीप्लायर का इम्पैक्ट, मुझे डाउट्स आते थे एंड आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ एक्सेप्टिंग इट. So I wanted individual attention from my teacher, but I did not get it because of the batch size of my class. Saturday and Sundays were kept by that institution for solving my doubts, but again उसमें भी line लगी होती थी students की. अब मैं कैसे अपने डाउट सॉल्व कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स में? I needed someone to help me with little aspects. But here in self study I saw that I could invest my time in understanding simple aspects through classes online which were free of cost available. जैसे कि आप सुपर कलाम पर आप देखो, we have super kalam over here, right? On YouTube I took classes on different aspects, different concepts in GS. वहां पर एक एक कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने एक क्लास ली हुई है here on YouTube. So student who like me finds something very tough to understand and he wants time to invest on that concept, एक दिन इन्वेस्ट करना चाहता है उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए, वो कर सकता है अपने पेस पर हेयर ऑनलाइन. ओके, देन नेक्स्ट व्हेन वी टॉक अबाउट एनवायरनमेंट, तो आप देखोगे मैंने जैसे स्टार्टिंग में आपको बताया थोड़ा कंपेटिटिव एनवायरनमेंट था.
इवन इन ग्रुप स्टडीज यू वुड सी एंड इन द क्लासेस पीयर ग्रुप्स बन जाते हैं, आप देखोगे कि स्टूडेंट्स हु आर गिविंग द थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट और स्टूडेंट्स हु आर रिसर्चिंग डीपर इनटू एनी कॉन्सेप्ट, वो अपने नए डेटा फैक्ट्स लेकर आएंगे और आप ओवरवेल्म फील कर सकते हो, राइट? सो इट इज अ लिटिल बिट स्ट्रेसफुल, बट हियर सेल्फ पेस्ड है यहाँ पर हमारी लर्निंग। यहाँ पर उस लेवल का कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन कम्स व्हेन ऑन इन दी लाइव यूट्यूब क्लासेस दैट आई टेक, स्टूडेंट्स आर कमेंटिंग देयर आंसर्स, वहां कंपटीशन आता है जल्दी से मैं भी कमेंट करूं। इन सुपर कलाम यू वुड सी यू हैव एक्यूरेसी परसेंटेज, देयर इज अ कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, आपको लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स में से अपनी एक्यूरेसी परसेंटेज हाई करनी है, बट इट इज एट योर ओन सेल्फ पेस, आपके खुद के पेस पर है वो। सो हियर competition is there but stress is not there, because stress is something that is going to take us one step, you know, you can say down in our preparation। स्ट्रेसफुल तरीके से तैयारी नहीं की जाती है, तैयारी कॉम्पिटिटिव हेल्दी कंपटीशन के साथ की जाती है, विच आई फाउंड ऑनलाइन, राइट, इन माई सेल्फ स्टडी। एंड देन अपडेटेड मटेरियल अगर देखें तो इन कोचिंग ना देयर वाज प्रिंटेड मटेरियल विच वाज गिवन टू अस, और जिसका अपडेशन होता था 4-5 मंथ्स के बाद, बट व्हाट अबाउट दोस 4-5 मंथ्स, राइट? बट हियर इट इज डायनामिक, बिकॉज ऑनलाइन अगर आप देखोगे, इवन इन क्लासेस यू वुड सी, सुपर कलाम पर अगर आप देखो, भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट पे, एंड यू नो एंशिएंट हिस्ट्री, स्ट्रैटेजी बेस्ड क्लासेस दैट वी हैव टेकन, every month we take new class, why? Because everything is changing rapidly, in polity also there are new judgments, तो हर महीने जो हम क्लासेस पॉलिटी की भी लेते हैं, they are dynamic, those new judgments are already added। Telegram communities that I joined, for example super kalam's telegram community, you would see that whatever new is happening जिस दिन होता है उसी दिन मैं शेयर करती हूँ नोट्स बना के, because I faced the same problem in my preparation, nobody was there to update me, but on telegram free of cost we try to share everything to update your notes so that your notes can become dynamic। प्लस अगर आप सुपर कलाम के प्लेटफॉर्म पे देखोगे, एवरी मॉड्यूल एवरीथिंग इज अपडेटेड, करंट अफेयर मैगजीन्स, ईयरली पीवाईक्यू मैगजीन्स, जो भी हम शेयर करते हैं सब कुछ अपडेटेड होता है। बट देर इज अगेन अ प्रॉब्लम इन सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी में भी एक प्रॉब्लम है। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन सेल्फ स्टडी इज इनकंसिस्टेंसी, दैट इज इट। और ये प्रॉब्लम कोचिंग में भी देखने को मिलती है। Taking a coaching does not guarantee that you will be consistent, the teacher will consistently, so you know, cover his or her syllabus, but what about your consistency? आपकी कंसिस्टेंसी का क्या? दैट्स एग्जैक्टली वेयर प्लेटफॉर्म लाइक सुपर कलाम कम्स इन। यहाँ पर आप देखोगे, इन सुपर कलाम यू कैन सेट योर गोल्स, देयर इज अ लीडर्स बोर्ड एटसेट्रा, एंड नॉट अबाउट जस्ट सुपर कलाम, इन सेल्फ स्टडी whenever you are online, you are studying, आप प्रिपेयर कर रहे हो, आपको एक पॉइंट याद रखना है, वेदर यू आर गोइंग टू अ कोचिंग, एक पॉइंट आपको याद रखना है, इट ऑल कम्स टू अस, इट ऑल कम्स टू अस, बी इट कोचिंग और सेल्फ स्टडी, कंसिस्टेंसी इज समथिंग दैट यू हैव टू मेंटेन। बाहर से आपको सारी हेल्प मिलने को तैयार है, इफ यू प्रिपेयर बाय योर ओन सेल्फ, स्ट्रेस नहीं होगा उतना, हेल्दी कंपटीशन रहेगा। कोचिंग में जाते हो सकता है वहां पर भी आपको हेल्दी कंपटीशन ही मिले, जरूरी नहीं है। But again, difference between coaching and self study is that you have to become accountable in your own journey। For that, what I used to do, मैं क्या किया करती थी अपनी जर्नी में अपने आप को accountable रखने के लिए, in my journey I used to create daily targets। In my journey I used to make sure that I have my PYQs, which still I have, and I'll show it to you। जैसे कि आप देखोगे मेरे पास हमेशा मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रखे रहते हैं। Why? Because whatever I'm teaching you, I refer to the PYQs before taking classes। In your journey, you have to make sure that you're joining a very trusted Telegram community where not just the videos these guys are posting, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियोस पे वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं, ऐसी कोई कम्युनिटी ज्वाइन कर ली या पीडीएफ पे पीडीएफ दे रहे हैं, नहीं। Something, some community where they are guiding you along with the classes that they are sharing, they are telling you why to watch those classes, they are sharing their own notes जो अपने हाथों से बनाए जा रहे हैं, because that means, that shows that the host of the telegram community is investing the same amount of time that you are investing in your preparation। वहीं से accountability बनती है। they are guiding you properly through either polls or they are talking to you directly, जहां पर communication है, so that you have one mentor to guide you। You have to prepare structured plan, जैसे कि when you look at super kalam, we have focus batch at super kalam, we have super plan at super kalam।
अकॉर्डिंग टू योर फीजिबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी यू कैन जॉइन एनी, जहां पर आपको स्ट्रक्चर ही स्ट्रक्चर मिलेगा। आप खुद का स्ट्रक्चर्ड प्लान बना सकते हो। कैसे? आप एक टाइम सेट कर लो। इन द इंटायर डे आई विल इन्वेस्ट 5 hours into my preparation. Once you decide this, then you can divide this 5 hour. In an entire day, I would study only two GS subjects, which which is healthy for your mind also. Out of these two GS subjects, one would be heavy subject and other would be light. For example, polity and environment, heavy and light ka combination. In polity, I will study two chapters. In environment, I'll study 1.5 chapter according to your pace of assimilation of knowledge. Make sure that I'm going to make sure that when I wake up, I'll go to the newspaper, the current affairs, to be aware of what is happening. उसके लिए आपके पास सुपर कलाम का डेली न्यूज एनालिसिस भी है। एंड दिस इज हाउ यू डिवाइड योर एंटायर डे। ये मेक श्योर करूंगा कि 1 घंटे में अपनी मेंटल हेल्थ को दूं और पार्क जाऊं ही जाऊं, चाहे कुछ हो जाए, कितना भी मुझे आलस लगे, कितना भी प्रोक्रास्टिनेट करूं, दूर है पार्क, 100 बहाने आए, बट मैं वॉकिंग करने तो जाऊंगा, भले ही अपनी कॉलोनी में ही 2 चक्कर लगा लूं। If you are going to be stay consistent on this plan that you are making for your own self, then trust me, nobody can shake your mental health, physical health, or your academic health. This is what I did, and this is what I interviewed so many those people who have cleared this exam. They also told me, जब वो सेल्फ स्टडी करने पे आते थे तो उन्होंने एक ट्रस्टेड टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन की थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपने पास रखते थे, उन्होंने अपने लिए एक स्ट्रक्चर्ड प्लान बना लिया था, डेली टारगेट्स के बेसिस पे वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते थे, एंड 1-1.5 घंटा वो फिजिकल फिटनेस पे इन्वेस्ट करते थे। बिकॉज वेन योर माइंड एंड योर बॉडी इज फिट, ओनली देन योर हार्ट कैन बी इन टू एनीथिंग। वरना दिल नहीं करेगा, मन नहीं करेगा। ये फ्रेजेस तभी आते हैं जब हमारा फिजिकल हेल्थ अप टू मार्क नहीं होता, जब हमारी मेंटल हेल्थ अप टू मार्क नहीं होती। And physical health and mental health both are interrelated with each other. I have been through this journey. I have prepared for my chartered accountancy as well. I understand the pressure it takes on our mind. ये easy exams नहीं है। CA and UPSC both are the toughest examinations in India. Now here, I want to ask all of you, if you are going to take any decision in your life with respect to UPSC preparation, be it coaching or self study, that depends on you. I just showed you a table that I used in my preparation to take this informed decision. अगर आप ये decision ले रहे हो, then you have to tell me one thing very honestly in the comment section. Are you ready to be consistent? आर यू रेडी टू नॉट क्वेश्चन योर ओन डिसीजन? क्योंकि एक बार आपने डिसीजन ले लिया, फिर आपको उसको वर्क करवाना पड़ेगा। व्हेन आई टेक एनी डिसीजन इन माय लाइफ, आई मेक श्योर दैट आई मेक इट वर्क। फॉर एग्जाम्पल, सेल्फ स्टडी वॉज माई डिसीजन एंड आई मेड इट वर्क। आई नेवर क्वेश्चन माई डिसीजन। आज तक मैं कभी क्वेश्चन नहीं करती अपने डिसीजन को, बिकॉज आई अंडरस्टैंड वेयर माई वीकनेसेस वर। बिफोर ज्वाइनिंग अ कोचिंग, please make a list of things that you think that can be easily available to you, the things that are going to cost you. Because remember, UPSC is not going to reward you on the basis of a coaching that you took. UPSC को फर्क नहीं पड़ता आपने कोचिंग ली या ना ली। UPSC is not going to reward you on the basis of location. आप दिल्ली से पढ़ रहे हो, आप बिहार से पढ़ रहे हो, आप मुंबई से पढ़ रहे हो, आप तमिलनाडु से पढ़ रहे हो। UPSC को नहीं फर्क पड़ता कि आप किस स्टेट में बैठ के तैयारी कर रहे हो। UPSC doesn't care if you are sitting on a floor or on a chair or on a sofa or on a bed. What matters is, are you having the right knowledge on the topic that you are going to solve a question on? That is what UPSC cares about. आज मैंने वॉल्केनो पढ़ा, क्या मैं उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हूँ जो यूपीएससी मुझसे पूछेगा? यूपीएससी को सिर्फ इस चीज से फर्क पड़ता है और किसी चीज से नहीं। तो अपने आप को, अपने दिमाग को, अपने दिल को आपको समझाना है कि व्हाट मैटर्स। When you know what matters, you can take the right decision. Everything is available online. I am here with you. Our Telegram community is there with you. Super Kalam is there with you. आपके लिए तो हम सब हैं, giving you and providing you with the right and the correct resources. This decision is yours. Are you going to utilize them with consistency, dedication, and discipline? And that, my friend, will help you take the right decision. अब आप अपना डिसीजन मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में विदाउट एनी हेजिटेशन बताना। What decision are you going to take at the end of this session? I am waiting for your answers, by the way.